See, equivalent weight of anything, I mean, there are multiple definitions of it. The most modern or recent, yeah, most advanced definition for equivalent weight is mass of any substance which is able to accept, share, lose or gain 1 mole of electrons is known as its share, lose or gain 1 mole of electron, 1 mole of electron is known as its equivalent weight. उनका इक्विवेलेंस वेरिएबल होता है, उनका इक्विवेलेंस वेरिएबल होगा। Obviously, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होगी और सी इलेक्ट्रॉन्स कितना गेन करेगा या कितना शेयर करेगा कोई भी चीज ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी रिएक्शन, जिस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, बिना रिएक्शन के कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज तो कर नहीं सकता है। सो इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिएक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, नो मैटर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट the equivalent weight is this is always going to be a reaction dependent property. ठीक है, कोई भी चीज कितना इलेक्ट्रॉन गेन लूज या शेयर करता है इस चीज पर ही, and obviously अलग अलग reactions में everything is going to lose, gain or share the electrons differently, and therefore they are going to have different equivalent weights at different times or during different reactions. The same element will have different equivalent weight at different point of time. Okay, is that okay? अब सी अगर मैं केमिकल कंपाउंड्स को डिवाइड करने जाऊं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन प्रीटेक्स्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशंस तो मैं दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। एक वैसी कैटेगरी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर क्वाइट एविडेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन कंपाउंड और सर्टेन केमिकल्स जिनके रिएक्शन में देयर इज डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच टेक्स प्लेस, ठीक है, और विजिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, विजिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। I'm basically talking about here, I am trying to talk about all the reactions, those reactions where redox is taking place. Reduction and oxidation is simultaneously taking place. And there is other set of reactions or other sets of compounds or obviously elements where evident elements अगर हुए तब तो हमेशा evident ही रहेगा. So other set of is when there is no evident or visible electron transfer which is taking place. No visible electron transfer is taking place. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर में प्राइमरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो इसके अंदर में आते हैं। इट कैन बी डबल डिस्प्लेसमेंट में सॉल्ट एसिड रिएक्शन इज आल्सो अ एसिड बेस रिएक्शन इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड बेस falls under category of double displacement reaction, isn't it? रहेगा ना, एसिड बेस रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना,
H2SO4 is reacting with NaOH. या CaOH whole twice. ये double displacement ही है. Calcium is replacing hydrogen, right? And hydrogen is combining with hydroxyl to form salt and water. Am I making sense? किसी भी पैरामीटर से अगर हम देखते हैं इसको ना, it is going to fall under double displacement reactions. ठीक है? So no visible electron transfer. Primarily we are talking about double displacement reactions or acid base category, and visible electron transfer all redox reactions. ठीक है? अब इसमें थोड़े से older definitions हैं, newer definitions हैं. Newer definitions पर आने के पहले I'll try to visit the older definitions. ठीक है, पुराने जो definitions थे वो क्या थे, उनको एक बार मैं visit कर देता हूँ, and then we will come on newer definition and simultaneously I'll talk about redox also. ठीक है, so let me first start with the older definitions or older notions of equivalent weight. सबसे पहला डेफिनेशन जो होता है इक्विवेलेंट वेट का, दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन. ठीक है, इट इज स्टेटेड दैट द वेट ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट, दैट combines with 8 gram of oxygen to form oxide. ठीक है, is known as equivalent weight of that element. Is known as equivalent weight of that element. ठीक है, सो N2O5 बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, नाइट्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 5 मोल्स के साथ कंबाइन करेंगे, राइट, 2 मोल्स ऑफ N2O5 बन जाएगा. मेकिंग सेंस? कितने ग्राम ऑक्सीजन हुए यहाँ पर, 16 दूना 32, 32 5 160, 160 ग्राम. 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम नाइट्रोजन यूज हो रहा है, 56 ग्राम. ठीक है, 8 ग्राम के साथ कितना यूज होएगा, बाई 20 किया तो यहाँ पर भी बाई 20 करेंगे, 2.8 ग्राम. Is that okay? So what is equivalent weight of nitrogen in this reaction, or what is the equivalent weight of nitrogen obviously in this reaction or in this compound? It's going to be 2.8 gram. ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन जो होता है, दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. द मास ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइंस with 1 gram of hydrogen to form hydride. खैर इसमें हाइड्राइड
ही बनता है और कुछ तो बन नहीं सकता है, is known as equivalent weight of that element। ठीक है, और साथ में तीसरा भी है डेफिनेशन, the mass of an element that combines with 35.5 gram of chlorine to form chloride is known as equivalent weight। Equivalent weight of that element। ठीक है, I hope the definitions are clear। Any doubt in these? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, बस ये ध्यान में रखना होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। मान लो कभी मूड हुआ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने का तो तभी उसमें ये पूछ सकता है, इस टाइप या इस पे फ्रेम करके जनरली रिएक्शन दे देगा एंड या स्टेटमेंट वाइज दे देगा, रिएक्शन भी नहीं देगा, स्टेटमेंट वाइज दे दिया, this much gram of chlorine is reacting with this much gram of an element, find its equivalent weight। So you should be able to recognize that it's 35.5 gram of chlorine which reacts to form chloride of an element, and जितना weight of element हम use कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमको calculate कर देना होगा। Is that okay? जैसे 7.1 ग्राम जो है क्लोरीन Cl reacts with 21.6 gram of Ag to form its chloride। ठीक है, क्लोराइड फॉर्म कर लेता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या होगा? इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट क्लियरली? यस सर। ओके, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस है, पता रहना चाहिए, ऐसी चीजों में गड़बड़ करके नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, माय पॉइंट इज आई मीन दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस। ओके, एक छोटी सी चीज पता नहीं मैंने बताया है नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार नोट्स चेक कर लेना। ड्यूलॉन्ग्स पेटेंट लॉ बताया था क्या? बताया था ना? फिर ठीक, 6.4। ठीक है, और कैलोरी पर ग्राम लेना होता है वहां पे। ठीक है, बता दिया था तो फिर ठीक है, चले गुड। अब ये बेसिक डेफिनेशन, इसमें हम मतलब इसमें सिर्फ कंसिडरेशन जो है ना सिर्फ एलिमेंट्स का किया गया है, मास ऑफ एन एलिमेंट, सो ये एलिमेंट्स के लिए प्राइमरी है। अब कंपाउंड्स मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो रिएक्शन के टाइप्स क्या है, अब इसके बाद बचता है मेरे पास बस दो ही चीजें, एक है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा होता है रेडॉक्स। ठीक है, तो अभी मैं डबल डिस्प्लेसमेंट वाले एंड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर मैं वर्क कराता हूँ, and then I'll go ultimately to the redox and then we will start with concentration terms। ठीक है, और नहीं अब आएगा ना,
इसमें n फैक्टर नहीं होता, ये वेट के टर्म्स में डायरेक्टली है एलिमेंट्स के, तो इसमें n फैक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ n फैक्टर हम इसमें भी निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। नाउ द n फैक्टर विल कम इनटू पिक्चर। इसमें डायरेक्टली वेट कंपैरिजन है तो इसमें n फैक्टर आता नहीं है। हाउएवर हम डेफिनेटली इसमें n फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे वी नो दैट हमने पता कर लिया 2.8 है, तो यहाँ पर n फैक्टर नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का n फैक्टर विल बी 5, ठीक है। और वैसे यहाँ से भी देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 5 का है, +5, तो वहां से हमको मिल जाता है कि ओके फाइन इट इज इन +5 स्टेट, पहले 0 था +5 तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ, therefore n factor is 5, but n factor is a secondary information over here, it's not primary information। वेट के हिसाब से जब कर, ये बेसिक डेफिनेशंस के हिसाब से जब कर रहे हैं, n factor will become a secondary information, ठीक है। सी यहाँ पर बेसिकली हमको ये जानना है कि एसिड बेस और सॉल्ट तीनों के, एसिड बेस एंड सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे ड्यूरिंग देयर रिएक्शन। तो यहाँ के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया विच इज नोन एज n फैक्टर, या यहाँ से एडवांस मेथोडोलॉजीज में वी हैव a term called n factor। n factor का definition होता है number of electrons or electron equivalent, electron equivalent का मतलब क्या हुआ a species which has unit positive or negative charge, a species having it's not all species, it can be fractional also, species having unit positive or negative that are shared or exchanged or exchanged during a reaction। इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट जैसे अगर एक Na+ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो मेरा n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर विल बी 1, ठीक है। 1 Na+ हुआ तो 5 Na+ हुआ तो
n फैक्टर विल बी 5, ठीक है। Na प्लस का नहीं, दूसरी स्पीसीज जो या फिर कंपाउंड जो है उसका। I'll elaborate it more when I'll be taking some more examples, अभी यूनिटरी वाले कर रहा हूँ। यानी किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पर 5 Na प्लस यूज हो रहे हैं, इसका मतलब उस कंपाउंड का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उस कंपाउंड का, Na का नहीं होगा, ठीक है, Na का 1 ही रहेगा, बट उस कंपाउंड का, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, इस कंपाउंड का n फैक्टर क्या रहेगा, इट विल बी 3, ठीक है। 3 Na प्लस इसके अंदर में है। अब इस Na फैक्टर के लिए जो है मल्टी डायमेंशनल थिंग्स कई एक तरह से आ सकता है। I'll elaborate on all of them. I'll touch all the dimensions so that एक से नहीं पकड़ में आ रहा है तो दूसरे से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। So यहाँ पर कंपाउंड का n फैक्टर इज 3, सोडियम का n फैक्टर क्या रहेगा, इट विल बी 1, एंड फॉस्फेट का n फैक्टर क्या रहेगा, इट विल बी अगेन 3। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिमिलरली कैल्शियम फॉस्फेट ले रहे हैं या एल्यूमिनियम सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या रहेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। एल का क्या रहेगा, एल का n फैक्टर क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 3। सल्फेट का क्या रहेगा 2, बट कंपाउंड का क्या रहेगा 6, ठीक है। मेकिंग सेंस? क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 2 Al3+ जो है वो यहां पर यूज हो रहा है, इस कंपाउंड में 2 Al3+ यूज हो रहा है, विच इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इन फैक्टर का लिटरल मीनिंग यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट स्पीसीज दैट आर शेयर्ड और एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग सारे केमिकल्स को अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो सारे केमिकल्स को हम लोग एक्चुअली या तो एसिड या फिर बेस या फिर सॉल्ट के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। सर दुनिया में 3 ही स्पेसिफिक, हाँ बोलो ना। Na2PO4 माइनस इसका क्या होगा, इसका 1 होगा या क्या रिएक्शन दे रहा है वो उसके हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। इस कंपाउंड, इस आयन के लिए अगर देखना है, ये अगर रिएक्ट कर रहा है, इस आयन के लिए अगर तुम देख रहे हो तो यस इट इज गोइंग टू बी 1, नहीं 2 नहीं हो सकता है। अगर ये रिएक्ट कर रहा है और Na2+ जो है, Na2 जो है वो रिप्लेस हो रहा है कैल्शियम से, मान लो, या किसी और से, बैरियम से, तो उस केस में इस आयन का 2 रहेगा। बट ये अगर कंबाइन कर रहा है किसी के साथ तो इट विल हैव अ n factor of 1. Am I making sense? अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसी सोडियम या पोटेशियम के साथ, मान लो रिएक्ट करके ये बना लिया Na2KPO4, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका क्या रहेगा n फैक्टर, इट विल बी 1, बट यही कंपाउंड रहता है, यही आयन रहता है Na2+ PO4- प्लस मे बी बैरियम, ठीक है, बैरियम 2+, और ये सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, इट्स बिकमिंग बैरियम फॉस्फेट 4-। यहां पर इसका क्या n फैक्टर हो गया, इट विल बिकम 2। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। Is it clear to all of you? Asna, Shubham? Yes, sir. Okay. See, अब ये वैलिडिटी ऑफ रिएक्शन में मत घुसने लगना,
आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लाइक पोटेशियम सोडियम को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है सर? एक्चुअली करेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ ये बॉन्ड करेगा पहले अट्रैक्टिव। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता नेगेटिव चार्ज किसी रीजन से, तब ये रिप्लेस करता सोडियम। ठीक है, एनीवे द वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन रिएक्शन इज नॉट अ पॉइंट टू बी टेकन ओवर हियर, एटलीस्ट इन दिस केस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज all the chemicals can be divided into either acid, base or salt। ठीक है, एसिड के केस में हमारा ये होता है कि n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जितने H प्लस रिप्लेस हुए वो हो जाएगा मेरा n फैक्टर। बेस के लिए सिमिलरली n फैक्टर इज इक्वल टू, या फिर अब लेविस एसिड वगैरह है तो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, राइट, दैट विल डिफाइन द n फैक्टर। नंबर ऑफ OH माइनस ions replaced during the reaction। ठीक है, सॉल्ट के लिए क्या होता है? सॉल्ट के लिए होगा n फैक्टर इज टोटल कैटायनिक और अनायनिक चार्ज। ठीक है, आइदर कैटायनिक और अनायनिक, नॉट बोथ टुगेदर। एल्यूमिनियम सल्फेट 3 2 6 3 2 6, 3 2 6, 2 3 6, 6 is the n factor। Sodium phosphate 3 into 1 was 3 and 1 into 3 is 3, so n factor is 3 and so on so forth। ठीक है, यहां पर रिप्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से 2। तो ये तीनों स्पीसीज का हम लोग n फैक्टर इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एंड वंस यू हैव द n फैक्टर, द इक्विवेलेंट वेट इज सिंपली इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाय n फैक्टर। इज दैट ओके? अभी एसिड बेसिस जो है उनमें थोड़ी सी चीजें जाननी होती हैं। यू नो व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, फिर डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, then we also have tetrabasic acid। ठीक है, मोनो के लिए क्या हो जाएगा? हर रिएक्शन में चूंकि एक ही है उसके पास हाइड्रोजन, ठीक है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, वही रिप्लेस हो सकता है, इसलिए हमेशा 1 रहेगा। डाई बेसिक वाले में you can have either 1 or 2, whether one of the hydrogen is getting replaced or both the hydrogens are getting replaced। जैसे सल्फेट अगर रहा, सल्फ्यूरिक एसिड रहा, तो दोनों साथ साथ लगभग रिप्लेस हो जाते हैं। बट वहीं बाइकार्बोनेट अगर रहा या कार्बोनेट रहा, कार्बोनिक एसिड रहा, तो उसका 1 करके भी हो सकता है। सो इट कुड बी आइदर 1 और 2। स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड जो रहेंगे उन सबका हमेशा 2 रहेगा, और वीक एसिड जो रहेगा उसका 1 और 2 में से कुछ भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। ट्राई बेसिक वाले में
Again, sorry, tri-basic वाले में you are again going to have 1, 2 और 3. स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमेशा 3, वीक रहेगा तो 1 और 2 भी हो सकता है. ठीक है. बेसिकली H3PO4 जो होता है, दिस इज अ ट्राई-बेसिक एसिड, whereas H3PO3 is a dibasic acid and H3PO2 is a monobasic acid. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता रहना चाहिए. इनके एन फैक्टर्स, मतलब विजिबल हाइड्रोजन जो है वो 3 दिख रहे हैं, तीनों में है, बट इनकी बॉन्डिंग थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती है. ये जो होता है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, OH एंड OH रहता है, इसमें P डबल बॉन्ड O, OH एंड H रहता है, और इसमें P डबल बॉन्ड O, H एंड OH रहता है. ठीक है. सो इसकी वजह से मोनोबेसिक ये हो जाता है, ये डाई बेसिक हो जाता है, और ये ट्राई बेसिक हो जाता है. टेट्रा बेसिक भी होते हैं, स्टैनिक एसिड वगैरह टेट्रा बेसिक हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन. स्टेप वाइज निकल सकते हैं, स्टेप वाइज निकलते हैं तो जैसे जिस स्टेप जितने निकलेंगे उतने रहेगा. 1 2 3 4 में से कुछ भी रह सकता है, नहीं तो ठीक है, जितने निकले रहेंगे उतना, रिएक्शन में जितने निकले उतना रहेगा उसका एन फैक्टर. एन फैक्टर पता चल गया तो we are going to use this particular relationship to get the equivalent weight. ठीक है. Similarly bases के अंदर में you have monoacidic base, diacidic base, triacidic base and tetraacidic base. ठीक है. टेट्रा एक्चुअली होता नहीं है, जनरली ट्राई तक ही अभी हमारे पास. तो so we have mono di or mono di tri acidic bases. ठीक है. और उनके एन फैक्टर भी ऐसे ही 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन क्या रिएक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर हम लोग काउंट करेंगे. सॉल्ट्स के लिए मैंने बता दिया, एन फैक्टर इज गोइंग टू बी टोटल आयनिक, कैटायनिक और आयनिक चार्ज होता है. सो कितने कटायन या कितने अनायन है और हर के ऊपर कितना चार्ज है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर एन फैक्टर. फॉर्मूला वेट से उसका वेट निकाल लोगे और मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट निकाल लोगे और उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट वेट आ गया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस जो भी हैं उनके अंदर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव ऑल दीज मेथोडोलॉजीज. वंस वी आर डन विद दिस, देन वी विल बी लुकिंग इनटू रेडॉक्स रिएक्शंस, एन फैक्टर. अब रेडॉक्स रिएक्शंस में होता ऐसा है कि वहां पर क्लियरली विजिबल होता है रेडॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain or lose per mole of species under consideration. ठीक है. जो भी स्पीसीज कंसिडरेशन के अंदर में है उसमें से पर मोल कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहा है, दैट विल बी माय एन फैक्टर. एन फैक्टर. ठीक है. अब रेडॉक्स होता क्या है? व्हाट इज रेडॉक्स? A reaction in which a reduction and oxidation takes place simultaneously. Oxidation and reduction takes place simultaneously.
ठीक है। वेट, एक मिनट, एक रिएक्शन निकलने वाला है। एक सेकंड। क्या समझ दिया जाए? बोलिए ना। क्या करूं? Is it a redox reaction or not? बैलेंस तो दिख रहा है ना? रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? राइट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसलिए ये रेडॉक्स नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अब पॉइंट ये है कि डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? Yes, bookkeeping of the number of electrons loosed or gained per atom, ठीक है, during a chemical reaction. Is that okay? Oxidation state is change of electrons that is taking place per atom during a reaction, obviously with respect to the initial state.
फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए या क्या इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, दैट इज बीइंग अकाउंटेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट. इज दैट ओके? अकाउंटिंग ऑफ slash bookkeeping of electrons in electrons exchange for atom during a reaction. That's oxidation state. Now, how to how to calculate the oxidation state is an important task. उसके बाद फिर reduction and oxidation के definition कराऊंगा, ठीक है? So steps to calculate oxidation state. अच्छा, steps पता है आप लोगों को? नहीं पता है? Do I need to discuss it या should I skip it? आसना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है ना या नहीं आता है? नहीं ठीक है, मतलब आता है तो फिर मैं इसको स्किप करूंगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, मतलब बताने में मुझे कुछ जाता नहीं है, ठीक है? बस एक चीज हाईलाइट कर दूं, जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तब हमारा एक कंसिडरेशन रहता है, वो ये रहता है कि वी कंसीडर ऑल द कंपाउंड्स एज, जो भी कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं, ये हमारा असम्पशन रहता है. ऑल कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रोवैलेंट, आर कंसिडर्ड इलेक्ट्रोवैलेंट. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? और फिर हम ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट हम डिस्टिंक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए या लूज हुए इसको हम देख पाए या ऑब्जर्व कर पाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है? एंड बाकी रूल्स सिंपल होते हैं. हाँ, यहाँ पर दूसरी चीज रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेज अ वेरी बिग रोल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लेज अ बिग रोल, जो भी ज्यादा है उसकी तरफ फुल चार्ज ट्रांसफर, और जो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है? ठीक है. सो वंस यू नो और इफ यू नो द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, देन डायरेक्टली हमारे पास फिर आ जाती है चीज कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऑक्सीडेशन क्या रहेगा हमारा, रिडक्शन क्या रहेगा? रिडक्शन क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म. ठीक है? एडिशन ऑफ molecular oxygen in oxide form.
रिडक्शन, एडिशन, क्या ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म, पेरोक्साइड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, बट रिएक्टेड फॉर्म में जाना चाहिए। एंड कहाँ से जाना चाहिए? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, O2 से जाना चाहिए, राइट। कोई और उसे मतलब ऑक्साइड से ही ऑक्साइड में जा रहा है तो नहीं। हाँ, और थोड़ा सा और प्रिसाइज आपको बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ऑक्साइड या पेरोक्साइड बोल सकते हो, या पेरोक्साइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, या पेरोक्साइड से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में जा रहा है तो दैट इज तो रिमूवल और रिडक्शन हो जाएगा। सो इनके साथ थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है। चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टू टेक प्लेस। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन जस्ट ऑक्साइड से ऑक्साइड फॉर्म में ही अगर वो शिफ्ट हो रहा है, दैट्स नॉट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऑक्सीजन का एडिशन जो हम लोग बोलते हैं बचपन में ना, दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। वी नेवर टेक ये note of this, but we are always talking about unconsciously, ठीक है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली रिडक्शन के टाइम पर हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट्स नॉट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और वो भी का किस फॉर्म में? हाइड्राइड के फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किस फॉर्म में रिमूव हो करके जाना चाहिए? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल इज रिडक्शन, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ electro positive metals or elements, removal of electro negative elements। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, एंड यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एक काम करते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स तो है मेरे पास, सो आई जस्ट डिस्प्ले इट ऑन द बोर्ड, और आप लोग ना उनके ये कर लो, थोड़े से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता दो फटाफट। जस्ट अ मिनट।
कुछ सेलेक्टेड वंस हाईलाइट कर देता हूँ, उनका कर दो। इसमें दोनों नाइट्रोजन का कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, अंडरलाइंड स्पीसीज। एक यहाँ पे कर लो, एक यहाँ पे कर लो। अब इसमें से काफी सारे जो है वो है आपके एक्सेप्शंस वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। एक यहाँ पे कर लो, एक यहाँ पे भी कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, काफी हो जाएगा। अरे गुड फ्रीज हो क्या गुड फ्रीज सेल्फ रेडॉक्स जो होते हैं ना, डिस्प्रपोर्शनेशन उनमें रहता है। तो लेट मी टेक और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको फ्यूम कंसंट्रेटेड ले लेता हूँ और इसको हीट कर दूंगा मैं ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो ये बना देता है सोडियम ब्रोमेट BrO3 प्लस। इसको हीट करना पड़ता है, कोल्ड वाले में लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो NaBr होता है। अगर कोल्ड रिएक्शन कराते हैं इसका तो NaOH प्लस Br2 gives us NaOBr प्लस NaBr। ठीक है, Br का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्या हुआ, 5 यूनिट। यहाँ पर क्या हुआ, 1 यूनिट। ठीक है, अब n फैक्टर Br का निकालने के पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा Br के टर्म्स में, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज जो है वो दोनों बराबर होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले 5 BF डालेंगे। यहाँ पर 5 हो रहा है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, और 5 और 1 टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 डालेंगे। अभी 3 Br2 के मॉलिक्यूल्स मिलकर के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या हो गया Br के लिए, 5/3 पर मॉलिक्यूल। कितना गेन लॉस होगा, 5/3 का। ठीक है, इज दैट ओके? आसना, एनी डाउट? इसका निकाल करके एक बार बताइए मुझे, क्या होगा एन फैक्टर Br का? यहाँ पर ये गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन और ये लूज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आई नीड 5 सच एटम्स टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल काउंट ऑफ एटम 6 हो गया, इसलिए इधर 3 डाल दिया मैंने। तो पर मॉलिक्यूल गेन या लॉस क्या हो रहा है, 5/3 का। तो n फैक्टर 5/3 हो गया। यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा, एनी गेसेस? 1। ठीक है,
चलेगा। फिर ये हो गया तो मोस्टली हो गया आप लोगों का। फिर ये मतलब ये क्लियर हो गया तो यू आर मतलब इस मामले में 85% यू आर डन। बाकी चीजें रेडॉक्स के टाइम पर बता दूंगा। मेरे पास ये वाला मुझे ना कंप्लीट भी करना है। कुछ क्वेश्चंस इसमें और बैलेंसिंग वाले डालने हैं, मैं डाल दूंगा आजकल में। वेरी लिटिल आर देयर, आई हैव टू ऐड some more into that. Okay, now we can move into concentration terms. n factor पता हो गया, equivalent weight पता हो गया, तो now एक छोटी सी चीज और, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट, दैट विल गिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट वेट क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस बाय फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट बाय n फैक्टर, ठीक है। और this can also be written as this by this is nothing but number of moles into n factor, ठीक है। so number of equivalents क्या हो जाते हैं? n factor into number of moles, right? So that is number of equivalents. Now I can come into concentration terms. So concentration terms are categorized into two categories, ठीक है। एक टर्म्स होते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी ए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। और 25 डिग्री पर अगर हमने 1 मोलर लिया या जो भी यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया, तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाता हूँ या 80 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाता हूँ, तो इसकी वैल्यू जो है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इनटू सॉल्यूट या सॉल्वेंट में कोई और चेंज नहीं किया, उसमें से निकाला कुछ नहीं, डाला कुछ नहीं, फिर भी उसका कंसंट्रेशन टर्म जो होगा, कंसंट्रेशन वैल्यू जो होगा दैट विल चेंज, ठीक है। अभी 1 यूनिट लिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 80 पर जाकर के वो मे बी 1.2 हो जाए, ठीक है, या फिर 0.9 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है उसके अंदर। जनरली कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसलिए वो कम हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी जो होती है कैटेगरी बी, दैट इज कैटेगरी बी, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब 20 डिग्री या 25 डिग्री पर जो वैल्यू है वही 100 डिग्री पर भी रहेगी, वही 500 डिग्री पर भी रहेगी। इंडिपेंडेंट concentration terms. So I will discuss one by one the list first and then individually.
कैटेगरी ए में ठीक है, जितने भी वॉल्यूम डिपेंडेंट चीजें हैं ना, दे ऑल आर गोइंग टू फॉल इनटू कैटेगरी ए। ठीक है, सो इट विल स्टार्ट विथ solubility. Solubility भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ग्राम्स पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरा होता है ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आप दिमाग लगाएंगे, और जनरली हम लोगों को ग्राम पर लीटर वाला रहेगा, बट ग्राम पर 100 ml का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल। 100 ml 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml है, बट 80 डिग्री सेल्सियस पर वो 110 ml हो सकता है या 105 ml हो सकता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी, विदाउट एनी अदर चेंजेस दैट विल डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इज दैट ओके? सो सॉल्युबिलिटी इज वन थिंग, देन वी हैव मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। कहाँ पे? वॉल्यूम परसेंट में 1 लीटर नहीं होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या, इनटू 100 क्यों, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट कर लिया है ना, और वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो मास विल बी डिक्रीज। जैसे 70 ग्राम किसी चीज का डाला मैंने 1 लीटर में, तो 100 ml में कितना होगा, ये करने के लिए क्या करना होगा, बाई 1000 इंटू 100। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम देता मैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता ना, मैंने यहाँ पर for 100 ml of solvent दिया है, तो that's take care of। Are we getting this point? या क्वेश्चन करना पड़ेगा? Molarity is the next thing, which is temperature dependent। और molarity क्या होता है, moles of solute, moles of solute by volume of solution into, और ये किस में रहेगा, in ml 1000, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया तो फिर कुछ ऊपर 1000 करने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स माय मोलैरिटी एंड इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंटिटी। फोर्थ वन इज गोइंग टू बी formality। number of formula units of solute by volume of solution in ml into 1000। सी फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। NaCl वगैरह जब हम डालते हैं वाटर के अंदर में ना, तो वो डिसोसिएट हो जाता है, NaCl बचता ही नहीं है, उसकी एंटिटी नहीं रहती है, वो Na+ और Cl- हो जाता है। बट फिर भी हम सॉल्यूशन को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर। दैट्स नॉट एक्चुअली 1 मोलर, दैट इज 1 फॉर्मल। Are we getting this point?
that solution is 1 molar in Na plus and 1 molar in Cl minus, ठीक है, but not 1 molar in NaCl. That is 1 formol in NaCl. Is it okay? क्या आयनिक में गलत कुछ नहीं था. फॉर्मल एंड मोलर जो है वो इंटरचेंज करके हम यूज करते हैं और वहां पर सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होता है बेवकूफ. हाँ थोड़ा सा. क्या चेंज होगा? हाँ तो वहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ आयन ही तो लेकर के करते हो ना. हाँ तो फिर फॉर्मेलिटी कहाँ से आई? तुम सॉल्यूट का कहाँ लेकर के करते हो? वहां पर आयन का कंसेंट्रेशन लेते हो ना. क्यों नहीं पढ़ती? सीधा ना वन फॉर्मूला और आगे क्या कहाँ पर तुमको 2 बार करना पड़ता है? देखो हम आयंस ले रहे हैं. हाँ तो सीधा हम वो लेते हैं क्या लेते हैं? कंपाउंड या सॉइल जो भी होता है. हाँ बेसिकली एक सॉल्युबल सॉल्वेंट सॉल्युबल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तब तो फॉर्मल और नॉर्मल दोनों सॉरी मोलर दोनों एक ही रहेगा. थोड़ा सा है जैसे ठीक है, थोड़ा सा है तो मोलैरिटी फिर उसके लिए डिफाइन ही नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि वो स्पीसीज ही नहीं बचा. ठीक है ना. तो मोलैरिटी की बात ही नहीं आएगी. अगर जैसे डिसोसिएट हो गया तो मोलैरिटी उसकी खत्म हो गई. एक्चुअली में वो रियलिटी में होता है फॉर्मेलिटी नहीं, बट उसको हम मोलैरिटी इक्विवेलेंस ले लेते हैं या मोलैरिटी बोल लेते हैं. ठीक है. इज दिस थिंग क्लियर? नॉर्मेलिटी सॉरी मोलैरिटी का यूनिट कैपिटल M. इसके बाद पांचवा टर्म होता है नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज number of equivalents by volume of solution in ml multiplied by 1000. This can also be number of equivalents can be written as number of moles into n factor. Number of moles और यहाँ पर सारी जगह पर सॉल्यूट है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स into n factor into 1000 divided by volume of solution in ml. This will become molarity into n factor. Okay. So normality is equal to molarity into n factor. तो ये पांचवा एंटिटी हो गया. सॉल्युबिलिटी, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी. अच्छा एक और भी है ऊपर रह गया. मास बाय वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी रहता है. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. ठीक है. ये भी क्या है हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ठीक है. तो इसको 2a और इसको 2b बोल सकते हैं. 6 नंबर पे हमारा आएगा डेंसिटी. Density is another concentration term and density is also temperature dependent concentration term, right? और कोई बचा क्या? नहीं और कोई बचा नहीं. ठीक है.
Let us now move on to type B. तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम का सिस्टम क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम क्या होगा? volume of solute by 100 ml of solvent. Volume of solute dissolved in 100 ml of solvent. Category B. The first one will be mass by mass percent. ठीक है, mass of solute by 100 grams of solute. Mass of solute in 100 gram of solvent. Actually, mass of solute per 100 gram of solvent. और वहां पर भी पर 100 ग्राम उसको डिवाइड लिख दिया है. That should be mass of solute per 100 gram of solvent. Mass of solute per 100 ml of solvent. पर का मतलब डिवाइड ही होता है, बट ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है. Okay, दूसरा is, the second one is mole fraction. ठीक है, मोल फ्रैक्शन, दो चीजों के मोल्स अगर हमने लिए हैं N1 N2, तो फर्स्ट वन का मोल फ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी N1 by N1 plus N2. सेकेंड वन का मोल फ्रैक्शन विल बी N2 by N1 plus N2. तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है मोलैलिटी. मोलैलिटी by small m, number of moles of solute per 1000 gram of solvent. ठीक है, और per kg of number of kg of solvent. ठीक है, यहाँ पर kg of solvent होता है, वहां पर solution होता है, ध्यान रखना. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे kg ऑफ सॉल्वेंट है. सो दैट इज अनदर थिंग. और तो इधर भी अब कुछ बचा नहीं. एक वेपर डेंसिटी वगैरह है, लेकिन वेपर डेंसिटी कंसंट्रेशन का में आता नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी भी है. रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो भी इंडिपेंडेंट आएगा. ठीक है, relative density, absolute density is temperature dependent, relative density is temperature independent. ठीक है, और कुछ बचा क्या? हाँ हाँ, रिलेटिव डेंसिटी में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ जाता है, दैट इज स्पेशल केस. स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्लूडेड. क्या? हाँ, वो लाया नहीं, निकाल के रख दिया घर पे. इसलिए आज यहीं पे रोकूंगा अब मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं जो